Test 2. Test of significance of difference between means of two small samples. Test 2. Test of significance of two means. Test of significance of two means. It is two samples test for mean, and it is t test, small samples, that is why we have to use t test here. So the first question is when we have to apply this particular test. So if we want to check, let us take one small example to get the better idea about this. If I want to check the average IQ of the student of two colleges is same or not, that I want to verify. There is one claim that college average IQ of the student of college A and college B is same. That is one claim. Now I want to check whether it's really true or not. How can we check this? That we have to study in this test. So obviously, first of all, we have to select few students from the college A. We have to find out the IQ of each and every student of that sample of college A. We have to find out average. Same thing, we have to select sample from college B. Not necessarily same sample size. Sometimes we have to take same sample size, sometimes different, because of it depends on the actual population. Maybe in college one there are 500 students, in another college there are 2000 students. So if we select 5% of this, then obviously N1 N2 are different. So sample size may be different. So from college 2 we have to select few students randomly, and we have to find out the average of that. Maybe the average of both are not exactly same, but they are sample average. Now we want to check whether the difference between that two is negligible or significant. If difference is negligible, we can say that the population mean of both the colleges, that means average IQ of the students of both the colleges for the all the student is same. That is our conclusion. And if difference is very significant, then we can say that the claim is rejected. Average IQ of the student of these two colleges are not same. So this is the problem in which we want to check whether the average of two population is same or not. So what we have to do here in step 1, in step 1 we have to write H naught and H1. The form of you can say that the step 1 is to set up the hypothesis. To set up the hypothesis, here we have to set up two hypotheses: null hypothesis and alternative hypothesis. Null hypothesis, what we have to write in null hypothesis in test 2? We have to write like this: there is no significance difference differences difference between two population means. There is no significant difference between two population means. Or you can write like this: the samples have been drawn from the population with equal means. Population with equal means. Or you can write the samples have been drawn
from the same population. The sample has been drawn from the same population. Or if you want to write in symbol, you can write like this only. mu1 equal to mu2. What is mu1? Population mean for first population mean for first population. Mu2 obviously mean for the second population, or you can say that population mean for second population. So our H0 is mu1 equal to mu2 and H1, here you are write mu1 not equal to mu2 or H1 mu1 greater than mu2 or H1 mu1 less than mu2. It is two-tailed test. This is right tail test. And this is left tail test. Now, when we have to use two-tailed test, so if nothing is mentioned like increasing, decreasing, at least, at the most, more than, less than, up, down, if nothing is mentioned like this in the question regarding to population mean, then you have to take two-tailed test. But if it is, the question is like the average IQ of the student of college A is higher than college B. If this is the claim, once again, the average IQ of the student of college A is higher than college B. Average IQ of the student of college A is higher than that of college B. Just tell me what we have to write in H0 and H1. Yes, please. What we have to write in H0 and H1 in that case? Once again, listen carefully. The question is, the claim is the average IQ of the student of college A is higher than college B. What is your H0 and H1? कौन बताएगा? H0 और H1 क्या होगा? कौन बताएगा? चलो फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं. The average IQ of the student of college A is greater than college B. ऐसा लिखा है, ग्रेटर देन या मोर देन, ऐसा दोनों में से कुछ भी लिखा. हाँ, H नॉट अपना होगा H0 is equals to mu1 is equals to mu2. करेक्ट. और H नॉट अपना होगा mu1 is greater than mu2. mu1 is greater than mu2. सही है. H0 में हम mu1 equal to mu2 लिखेंगे और H1 में mu1 greater than mu2 लिखेंगे, क्योंकि जब मैं mu1 equal to mu2 लिखूंगा तो इसका मतलब दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स का IQ सेम है. इसका मतलब जो क्लेम बोला था वो मैंने रिजेक्ट किया. तो H1 में मैं लिखूंगा जो क्लेम है वो सही है. दो में से एक जगह पे क्लेम सही है ऐसा लिखना है, दूसरी जगह पे क्लेम गलत है ऐसा लिखना है. लेकिन H0 में ऑलवेज म्यू इक्वल टू mu1 इक्वल टू mu2 लिखना है. उससे हमको ये पता चलेगा कि क्लेम एक्सेप्ट होता है कि रिजेक्ट होता है. अगर क्लेम एक्सेप्ट होता है तो H1 में रिजेक्ट होता है ऐसा लिखना है, अगर वहां पे रिजेक्ट होता है तो H1 में एक्सेप्ट होता है ऐसा लिखना है. सो व्हेन वी राइट H0 mu1 इक्वल टू mu2 तो हमने ये सोचा कि दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स का एवरेज IQ सेम है. इसका मतलब हमने ये सोच लिया कि दोनों सेम है, इसका मतलब क्लेम गलत है, क्योंकि क्लेम में बोला था कि मोर देन है, तो हमने क्लेम गलत है ऐसा सोचा.
तो H1 में हमको सोचना है, क्लेम सही है। चलो फिर से क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन में ऐसा बोला होता, द एवरेज IQ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज A is at the most that of college B. Average IQ of student or average IQ of the student of college A is maximum, at the most means maximum, यानी उतना या उससे कम होगा कंपेयर टू कॉलेज बी। यानी कॉलेज बी के स्टूडेंट्स के एवरेज IQ से कॉलेज ए के स्टूडेंट्स का एवरेज IQ आइदर उतने जितना होगा या उससे कम होगा। दैट इज द क्लेम। वंस अगेन इसको मैं कैसे लिखूंगा? The average IQ of the student of college A is at the most that of college B. Average IQ of the student of college A is at the most that of college B. अगर ये क्लेम को चेक करना है, what we have to write in H0 and H1? Yes. रोल नंबर 125 बोलो। बोलो। म्यू2 लेस देन म्यू1 होगा। हाँ, H0 में H1 म्यू2 लेस देन म्यू1 होगा। H1 म्यू2 लेस देन म्यू1 बोल रहे हो? हाँ यानी मैं ऐसा लिखूं, म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2? हाँ बहुत म्यू1 आसान। ग्रेटर देन म्यू2 ऐसा लिखूं? नहीं म्यू2 लेस देन म्यू1 ग्रेटर देन म्यू1। हाँ नहीं 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 तो म्यू2 लेस देन म्यू1 लिखो, इसका मतलब तो ऐसा हुआ ना, म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2। सर एक बार क्वेश्चन रिवाइज करना फिर से। Average IQ of the student of college A is at the most that of college B. यानी फिर से, एवरेज IQ of the student of college A is at the most average IQ of the student of college B. Average IQ of the student of college A means first college is at the most average IQ of the student of college B. म्यू1 लेस देन म्यू2। म्यू1 लेस देन म्यू2 लिखो हाँ H1 में, हाँ H1 में, और H0 में इक्वल हो जाएगा वो तो म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2। ओके। और किसी को कुछ बोलना है कि सबको समझ में आ गया? चलो रोल नंबर 117 एग्री होते हो? यस या नो बोलना है, हर एक को यस या नो बोलना है। 117, यस यस 130, સર આ એટ મોસ્ટ માં ખબર ના પડી। ओके 124, यस ग्रेटर देन आएगा सर आई थिंक। अभी चेंज कर दिया आई थिंक। 123 ग्रेटर देन या लेस देन? હા સર એટ મોસ્ટ ની આમ ફરીથી ડેફિનેશન આપો તો પેલા આપી તેમ। एट द मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब उतना या उससे कम। एट द मोस्ट, आपका फ्रेंड है ना, उसकी एज एट द मोस्ट आपके जितनी होगी। आपका जो फ्रेंड है ना, उसकी एज एट द मोस्ट आपके जितनी होगी। इसका मतलब आपके फ्रेंड की एज आपसे ज्यादा नहीं होगी, आइदर आपके जितनी होगी या उससे कम होगी।
समझ में आया रूल नंबर 130 एट द मोस्ट का मीनिंग? यस यस। चलो 123 ग्रेटर देन लेस देन में से एक आंसर बताओ। लेस देन सर। mu1 लेस देन mu2। हाँ सर। 127 127 127 लीव हो गया। करो तो 127 एक बार वीडियो टर्न ऑन करो। लेस देन ठीक है। 115 सर लेस देन आएगा। 116 लेस देन। 122 सर आइडिया नहीं है। 125 फिर से बोलो क्या आएगा? लेस देन। लेस देन आएगा। अब देखो हाँ सोचते हैं हम क्लेम में क्या था कि कॉलेज ए के स्टूडेंट्स का एवरेज आईक्यू एट द मोस्ट का मतलब मैक्सिमम इतना होगा, यानी उतना होगा या उससे कम होगा, ऐसा क्लेम था। उतना होगा या उससे कम होगा ऐसा क्लेम था। अब जब मैं एच नॉट में लिखता हूं μ1 इक्वल टू μ2, तो इसका मतलब मैंने ऐसा सोचा कि हाँ भाई क्लेम में जो बोला है वो सही है, क्योंकि उतना होगा या उससे कम होगा, इसका मतलब क्लेम में जो बोला है वो सही है, ऐसा मैंने एच नॉट में लिखा। अब मैं H1 में लिखता हूं μ1 लेस देन μ2, इसका मतलब एवरेज आईक्यू कॉलेज ए के स्टूडेंट्स का कम होगा, इसका मतलब जो क्लेम बोला था वो सही है, ऐसा ही हुआ, क्योंकि क्लेम में ऐसा ही बोला था इधर उतना होगा या उससे कम होगा। तो H0 में उतना लिखा और H1 में उससे कम लिखा, तो दोनों में से कुछ भी एक्सेप्ट होगा। अब तो क्लेम एक्सेप्ट ही करोगे ना। हमको H0 में अगर एक्सेप्ट होता है तो H1 में रिजेक्ट होता है, ऐसा लिखना पड़ता है। तो अगर H0 में एक्सेप्ट होता है यानी H0 में μ1 इक्वल टू μ2 लिखने से उसने जो क्लेम बोला था वो क्लेम के बारे में हम ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई क्लेम सही है, क्योंकि μ1 इक्वल टू μ2। क्लेम में क्या था आइदर इक्वल टू होगा या लेस देन, तो इक्वल टू में भी एक्सेप्ट होगा, तो हमको H1 में क्लेम रिजेक्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा। तो क्लेम रिजेक्ट कब होगा? जब μ1 ग्रेटर देन μ2 होगा तब, क्योंकि क्लेम में क्या बोला था कि एट द मोस्ट इतना होगा, अगर एट द मोस्ट इतना होता है तो उससे ज्यादा होगा तो ही रिजेक्ट होगा। तो H1 में हमको लिखना पड़ेगा μ1 ग्रेटर देन μ2। अभी तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोलो, आप सबने लेस देन बोला था वो गलत है, μ1 ग्रेटर देन μ2 लिखना पड़ता है। रीजन मैंने बता दिया, फिर भी समझ में नहीं आया हो तो बताओ। सर अपने एचओ को फिक्स्ड मत करो यार, एचओ को वो इक्वल टू पे ऐसे फिक्स मत करा करो। चल तू H1 में क्या लिखना चाहता है वो बताना। मैं तो एचओ में लेस देन और इक्वल टू कर दूंगा और फिर H1 में ग्रेटर देन कर दूंगा। तो बस तेरे को आता है ना इसका मतलब कि H1 में तो ग्रेटर देन आएगा, हाँ तो फिर H0 में ग्रेटर देन लिखने के बाद H0 में इक्वल टू कर देना, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व, मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व। ठीक है। बोल। ठीक है सर। और सर पॉपुलेशन एक ही होगी और उसमें से अपने 2 सैंपल ले रहे हैं। ऐसा बोला मैंने? नहीं, उस केस में अपने ये टेस्ट करेंगे कि पेयर टी टेस्ट करेंगे। वो मुझे नहीं पता है, तू यार आगे आगे पेयर टी टेस्ट क्या होता है मैंने कभी नाम भी नहीं सुना है अभी तक तो। ठीक है सर, कोई नहीं। मैं जो बता रहा हूँ उसका आंसर बता ना, दूसरा क्वेश्चन मत कर मेरे को। ठीक है सर। हाँ
अब ये बता H नॉट में ये क्वेश्चन में तू क्या लिखेगा विथ एक्सप्लेनेशन, H नॉट और H1? H naught mu1 is equal to mu2 and H1 mu1 greater than mu2. अब वो क्यों, एक्सप्लेन कर। लाइक अपने कॉलेज ए की जो एवरेज आईक्यू है वो मैक्सिमम ऑफ कॉलेज बी हो जाएगा, कॉलेज बी के आईक्यू हो जाएगी। तो अपने एच नॉट में म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू लिखेगी, इसका मतलब कि वो म्यू वन एग्जैक्टली इक्वल टू होगा या तो फिर लेस देन हो जाएगा। और एच ओ एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर अपने उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट लिखना है म्यू टू में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। तो अपने उसमें ग्रेटर देन कर देंगे तो टेस्ट सही हो जाएगा ना। सही इधर है। एच ओ एक्सेप्ट होगा वो या फिर वो रिजेक्ट होगा, दोनों। चलो बाकी किसको समझ में नहीं आया वो बताओ। चलो तो मैं एक तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो जब तक H नॉट और H1 में समझ में नहीं आता है काम कुछ बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मेन है कि हमको H नॉट एक्सेप्ट होगा कि H1 एक्सेप्ट होगा, वो तो ढूंढना है। लेकिन दोनों में आप ऐसा ही लिख रहे हो कि दोनों का मतलब क्लेम एक्सेप्टेड होगा, तो पूरा एग्जाम्पल करने के बाद आंसर कंक्लूजन में तो वही लिखोगे ना। तो करने की जरूरत क्या थी पूरा टेस्ट, क्योंकि आपका कंक्लूजन तो सेम ही रहने वाला है। आइदर H नॉट एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट H नॉट हो, आपको तो क्लेम एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा उसका। तो जब तक H0 और H1 में क्लैरिटी नहीं है कुछ काम में नहीं आएगा। चलो एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, देखते हैं। वही क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं। एवरेज IQ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज A इज एटलीस्ट एवरेज IQ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज B। ए के स्टूडेंट्स का एवरेज IQ, कॉलेज ए के स्टूडेंट्स का एवरेज IQ एटलीस्ट कॉलेज बी के स्टूडेंट्स के एवरेज IQ जितना है। एटलीस्ट का मतलब ये होता है आइदर उतना या उससे ज्यादा। 125 को छोड़ के कोई भी आंसर बता सकता है। 125 लास्ट में तुमको आंसर बताना है। मैं जानता हूं कि तुमको आंसर पता है इसलिए पूछ रहा हूं। 125 को छोड़ के कोई भी स्टूडेंट बोलेगा। सर हाँ एच नॉट अपना म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 रहेगा वेरी गुड। और H1 में म्यू1 इज लेस देन म्यू2 आएगा। अब बताओ क्यों ऐसा? क्योंकि सर H1 में एच नॉट में हमने लिखा तो सही कि उससे ज्यादा या मतलब उस उतना या उससे ज्यादा होगा, तो इसलिए हमने इज इक्वल टू लिखा तो अपना क्लेम सही हो गया। तो H1 में हमने गलत क्लेम करना पड़ेगा ना। वेरी गुड वेरी गुड। चलो वो रोल नंबर 125 बताओ, इसमें जो बोला वो सही है कि गलत है? करेक्ट है। वेरी गुड। अभी और किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। ओके तो चलो एक दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं और बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। एवरेज IQ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज A is more than the average IQ of student of college B। once again, कॉलेज A के स्टूडेंट का एवरेज IQ बी के स्टूडेंट्स के एवरेज IQ से ज्यादा है, ऐसा क्लेम है। बोलो H0 और H1 में क्या लिखना पड़ेगा? वन 115 और 125 को छोड़ के कोई भी बताएगा। वन 115 और 125 को छोड़ के कोई भी बताएगा। हाँ बोलो हाँ भरत। हाँ एच नॉट M1 इक्वल टू M2। μ1 इक्वल टू μ2। हाँ म्यू1 इक्वल टू म्यू2। ओके ने H1 म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2। ओके केम
हाँ H1 तो सेम ही रहेगा। H0 हाँ H0 અને हाँ M1 में क्लेम एक्सेप्ट होगा H1 में। हाँ हाँ इसलिए मोर देन हो जाएगा ना, इसलिए क्लेम एक्सेप्ट होगा। फिर से एक बार बता दो, मैं जानता हूं तुम सही हो, बट फिर से क्लैरिटी के लिए, मेरी क्लैरिटी के लिए। हाँ H0 में क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता है, અને मोर देन आपने कहा है, इसलिए H1 में क्लेम एक्सेप्ट होता है, ऐसा मेरा कहना। वेरी गुड, सही है, परफेक्ट परफेक्ट। सो H0 में हमने लिखा μ1 इक्वल टू μ2 का मतलब उन्होंने जो क्लेम बोला था मोर देन, वो हमने रिजेक्ट किया, क्योंकि मोर देन नहीं है, इक्वल है, तो क्लेम रिजेक्ट हुआ। तो H1 में लिखना पड़ेगा क्लेम एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है इसका मतलब μ1 ग्रेटर देन μ2 लिखना है, परफेक्ट है। तो मोर देन में हमने H1 में μ1 ग्रेटर देन μ2 लिखा मोर देन में, और एटलीस्ट में हमने μ1 लेस देन μ2 लिखा था। सो एक वर्ड की वजह से पूरा चेंज हो सकता है, सो बी केयरफुल। बस ये जगह पे एटलीस्ट, एट द मोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, अप, डाउन, सुपीरियर, इंफीरियर, ये वर्ड्स की वजह से H0 और H1 में चेंज, H0 तो सेम ही रखो, H1 में चेंज हो सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, इतना रखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करना इसके बारे में सोच के। नेक्स्ट लेक्चर में विद इन 1 मिनट ये क्लियर करने के बाद हम नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं है, अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया है तो वो करके पोस्ट कर देगा। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।